Hello student, welcome back to our channel NEET Mantra. I am Prince Sharma, your biology faculty and mentor. So student, in this video we are going to have quick revision of chapter digestion and absorption. If you missed our previous quick revision videos, link is in the description, and for more videos like this, please do subscribe to our channel. So what is digestion? Conversion of complex food substance to simple absorbable form is known as digestion. As we all know, humans are omnivores holozoic. So first we ingest the food, then we show propulsion. Propulsion means movement of food along the alimentary canal, then digestion, after that absorption, after that assimilation, and then egestion. So what are components of food? There are major component of food and minor component of food. Carbohydrate, protein, fat are major component of food, and vitamin, minerals are minor component of food. Vitamin or vitamins are of two type: water soluble, water insoluble, or fat soluble. Vitamin B complex and vitamin C are water soluble. Vitamin A, D, E, K are water insoluble. आप इसको कीड़ा की ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, KEDA कीड़ा. Next, we intake water which prevent dehydration of the body. डाइजेशन इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस. मैकेनिकल मतलब हम इसमें क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे मैकेनिकली विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, एंड बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स हम इसमें क्या है, फूड का ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. आर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल plus associated gland, and alimentary canal is a long tube which is present from our mouth to our anal opening. Now we look at complete alimentary canal from anteriorly mouth opening to post anal opening. First we have mouth, then pharynx, after that esophagus, after that we have stomach, then we have small intestine. Up to small intestine it is known as upper tract, and it is about 8 to 10 meters. After that we have large intestine, rectum, anus, and it is known as lower tract. Mouth, it leads to oral cavity. Oral cavity consists of teeth and muscular tongue. Teeth, we have three terms to define teeth. These are thecodont. Thecodont means our teeth are embedded in socket of jaw bones. Heterodont, हमारे पास चार अलग तरह के टीथ होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. डायफायोडोंट, हमारी पूरी लाइफ में टीथ दो बार आते हैं. जो पहली बार आते हैं वी कॉल देम डेसिडुअस टीथ और मिल्क टीथ, एंड आफ्टर दैट परमानेंट टीथ कम. सो दांत हमारी लाइफ में दो बार आते हैं. टीथ फॉर्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज नोन एज टीथ फॉर्मूला. In adult human, the teeth formula is 2123 upon 2123. Up to 17 years, it is 2122 upon 2122. For child, it is 2102 upon 2102. In child, premolar are absent. You must remember this. Permanent teeth are 32 in number, and milk teeth are 20 in number. Enamel. Enamel is a teeth covering. It is made up of calcium phosphate. Formula is Ca3 bracket PO4 twice and magnesium. And it help in mastication of food. ये जो भी आप फूड खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करता है. Tongue. Tongue is a freely movable and muscular structure. It is attached to floor of oral cavity by frenulum. Upper surface. टंग के अपर सरफेस पे छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम पैपिले बोलते हैं. 4 टाइप्स के पैपिले होते हैं जिसमें से 3 में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव फेरिंग्स. ओरल कैविटी लीड्स टू फेरिंग्स. कॉमन, ये वाली जो लाइन है ये आपको याद रखनी है. यू मस्ट रिमेंबर दिस लाइन. कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज नोन एज फेरिंग्स. बेस्ड ऑन ओपनिंग, फेरिंग्स इज ऑफ 3 टाइप्स. नेसोफेरिंग्स, it is the upper part of the pharynx connecting with nasal cavity of the soft palate. Second, we have oropharynx. The part of the pharynx that lies between soft palate and the hyoid bone is known as oropharynx. And the third one is laryngopharynx. It is found between the hyoid bone and the larynx and esophagus. Now जो आपका फेरिंग्स है उसमें ईसोफेगस और ट्रैकिया,
जो कि विंड पाइप है, दोनों ही अपनी ओपनिंग शो करती हैं। तो जो आपका फूड है वो ट्रैकिया में ना जाए, टू अवॉइड फूड गोइंग इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप, देयर इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप नोन एज एपिग्लोटिस प्रेजेंट above the trachea. It prevents the entry of food in glottis, opening of windpipe during swallowing. तो जब भी आप फूड को निगलने वाले होते हैं, जब आप फूड को अंदर लेने वाले होते हैं, तो एपिग्लोटिस क्या करता है, आपके विंड पाइप को, ग्लोटिस को, जो ओपनिंग होती है ट्रैकिया की, उसको क्या है, कवर कर लेता है और फूड को विंड पाइप में एंटर होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट वी सी ईसोफेगस। इट इज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो ईसोफेगस है ये एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है इसका, इसलिए इसको एक्टोडर्मल इन ओरिजिन बोलते हैं। इट इज़ अ थिन लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम एंड लीड टू जे शेप स्टमक। तो ये पीछे से, आपके नेक के पीछे वाले साइड से, थोरैक्स से और डायफ्राम से होते हुए एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर से कनेक्ट करती है, जिसको हम स्टमक बोलते हैं। सिरोसा इज एब्सेंट इन ईसोफेगस। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट इन ईसोफेगस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। नाउ वी लुक एट स्टमक। It is present in upper left portion of the abdominal cavity. Between stomach and esophagus there is a sphincter present, a muscular structure it is, which is known as gastroesophageal sphincter. इसका काम होता है कि जो फूड आपके स्टमक में आया है वो वापस से ईसोफेगस के रास्ते आपके माउथ से बाहर ना निकल जाए। तो टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड, gastroesophageal sphincter is there. Stomach have 3 parts. Anteriorly we have cardiac and fundic. तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कार्डियक पार्ट को और फंडिक पार्ट को अलग अलग बता देते हैं और 4 पार्ट बता देते हैं स्टमक में, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिडिल पोर्शन इज़ बॉडी एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज़ पायलोरिक। मस्कुलर स्फिंक्टर नोन एज पायलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड ड्यूडिनम, विच रेगुलेट द, जो खाना आपका स्टमक से ड्यूडिनम में जा रहा है उसको रेगुलेट करता है, जो पायलोरिक स्फिंक्टर है। इनर सरफेस, जो स्टमक का इनर सरफेस होता है उस पर गैस्ट्रिक रगे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी लुक एट स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज ड्यूडिनम. इट इज़ यू शेप्ड. फर्स्ट पार्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. पेनक्रियाज लाइज इन द रूट. तो जो पेनक्रियाज होता है वो ड्यूडिनम से अटैच्ड होता है। जब हम इसके जो डक्ट्स वगैरह देखेंगे तो पेनक्रियाज भी ड्यूडिनम के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट वी हैव जेजुनम. ये क्या है, मिडिल पार्ट होता है और कॉइल्ड पोर्शन होता है, हाईली कॉइल्ड होता है ये। नेक्स्ट वी हैव इलियम, posterior part of the intestine, and it is open into large intestine. Next we have large intestine. It is endodermal in origin. It consists 3 parts. First one is cecum. It is small blind sac and it has some symbiotic microorganism present in it, and a structure known as vermiform appendix is attached to cecum or arise from cecum. It is a vestigial organ. Vestigial organ ऐसे organ होते हैं जो आपके ancestors में functional थे पर वो अब हमारी body में functional नहीं है. They are not functional presently. Next we have colon. Colon is subdivided into 3 parts: ascending colon, transverse colon and descending colon. And the last one and third one in large intestine is rectum. It is the last part of large intestine. It temporarily correct the fecal matter and open out through anus. Now we look at the wall of alimentary canal. Esophagus to rectum, it possesses 4 layers. First one is mucosa. It is innermost layer. So we talked about ragae in stomach. So ragae are formed by mucosa layer. These are irregular fold in stomachs. It also forms finger-like projection in small intestine, which we know by the name of villi. तो ये जो म्यूकोसा लेयर होती है
वो इरेगुलर फोल्ड बनाती है जिनको रगे बोलते हैं स्टमक में, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम विलाई बोलते हैं। इंटेस्टाइनल विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन नोन एज माइक्रोविलाई। तो जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है उन पे बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक विलाई प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और उससे एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आता है। और इसका मेन पर्पस होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, जिससे क्या है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। विलाई आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड लैक्टेल। तो जो विलाई है, विलाई में आपको अच्छी ब्लड सप्लाई मिलेंगी कि वहाँ पे कैपिलरीज होती हैं, और एक लिम्फ वेसल भी होती है जिसको लैक्टेल बोलते हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव म्यूकोसल एपिथीलियम। जो म्यूकोसल एपिथीलियम है इसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं विच सिक्रीट्स म्यूकस एंड इट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द फूड मटेरियल। Next we see gastric gland. It is present in mucosal layer of stomach. And next we have crypts of liver cune. They are present in intestine. Basically present between crypt between vessels of villi and mucosal layer. So crypt mean a pit-like structure. Next we have submucosa. It is made up of loose connective tissue. It contains nerve, blood and lymph vessels. Next we have muscularis layer. It is made up of smooth muscle. It have two layer. Inner one is circular layer, outer one is a longitudinal layer. An extra layer which is known as oblique muscle layer is present in stomach. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो oblique muscle layer है वो आपके stomach में present है। Fourth one we have serosa. It is the outermost layer. It is made up of thin mesothelium with some connective tissue. Now we talk about digestive glands. First one we have salivary gland. These are exocrine gland, means they have duct. उनके पास duct होती है. These are of three type. Parotid which is present in cheek, submaxillary, submandibular जो आपके lower jaw में होता है, present in lower jaw. Third है आपका sublingual which is present below the tongue. Next we have liver. Liver is the largest gland. 1.2 to 1.5 kg इसका वेट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज़ हिपैटिक लोब्यूल। तो जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिवर की उसको हम हिपैटिक लोब्यूल बोलते हैं, और जिसके आसपास एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको हम ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। सो व्हाट इज़ ग्लिसन कैप्सूल? A layer of connective tissue surrounding the liver and encircling the hepatic artery, portal vein and bile duct within the liver. तो बेसिकली जो ग्लिसन कैप्सूल है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो अपने अंदर कवर करके रखता है हिपैटिक आर्टरीज, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट्स को। नाउ वी लुक एट वर्किंग ऑफ लिवर। हिपैटिक सेल ऑफ लिवर सिक्रीट बाइल। तो जो हिपैटिक सेल है लिवर के वो बाइल सिक्रीट करते हैं, और ये हिपैटिक डक्ट के होते हुए सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? गॉल ब्लैडर में, एंड वहाँ पे ये स्टोर होते हैं और इनका जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाता है। सो हिपैटिक सेल ऑफ लिवर सिक्रीट बाइल एंड थ्रू हिपैटिक डक्ट दे रीच टू गॉल ब्लैडर एंड गेट कंसंट्रेटेड देयर। आफ्टर दैट गॉल ब्लैडर हैज़ अ डक्ट जिसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, और लिवर की जो डक्ट होती है जिसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं, दे जॉइन एंड फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। तो आपको ये याद रखना, सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से निकल रही है और हिपैटिक डक्ट क्या है आपके लिवर से निकल रही है, और ये जॉइन करके एक कॉमन बाइल डक्ट बना रहे हैं। देन कॉमन बाइल डक्ट विल जॉइन विथ पेनक्रियाटिक डक्ट एंड देन ओपन इनटू ड्यूडिनम एज कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट है वो अब क्या करेगी? पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी और उसके बाद ड्यूडिनम में खुलेगी, और उसको हम बोलेंगे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा गार्ड करने के लिए, जिसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। नेक्स्ट वी लुक एट पेनक्रियाज। पेनक्रियाज यू कैन कॉल पेनक्रियाज अ मिक्स ग्लैंड, बिकॉज इसमें आपको क्या है एक्सोक्राइन पार्ट भी मिलता है और एंडोक्राइन पार्ट भी मिलता है। वो अलग बात है कि एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% ही होता है। सो नाउ वी लुक एट द सेल। फर्स्ट वी लुक एट अल्फा सेल, इट सिक्रीट ग्लूकागोन विच इंक्रीज ब्लड शुगर। सेकेंड वी हैव बीटा सेल विच सिक्रीट इंसुलिन एंड अमाइलिन।
Insulin decrease blood sugar. So glucagon and insulin are एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं. ग्लूकागोन ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करता है और इंसुलिन ब्लड शुगर को डिक्रीज़ करता है. नेक्स्ट वी हैव डेल्टा सेल विच सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन, और ये क्या है, दोनों को ही, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का ही सिक्रेशन क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास सिक्रेट एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें काफ़ी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ वी लुक एट डाइजेशन ऑफ फूड. तो जैसा कि हमने बताया था कि डाइजेशन एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है. तो जैसा कि आप अपने दांतों से फूड को चबाते हैं, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस का एग्जांपल हो गया. सो इन बकल कैविटी वी परफॉर्म मैस्टिकेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग. तो हम क्या करते हैं, बकल कैविटी में अपने फूड को सब च्यू करते हैं और जो स्वेलो करना होता है हमें फूड को, उसमें मदद होती है. Food in buccal cavity is known as bolus. It is a ball-like structure of food. From buccal cavity, food moves down to esophagus, and esophagus there is a movement present known as peristalsis movement, and this is due to the muscular contraction and relaxation. तो जो esophagus की जो muscles हैं वो contract और relax करती हैं, जिससे food आगे movement करता है, और इसी movement को peristalsis movement बोलते हैं. Saliva secreted in buccal cavity have a pH of 6.8 and contain sodium, potassium, chlorine and bicarbonate ion. And the enzyme present in saliva are salivary amylase, which hydrolyze 30% of carbohydrate, and lysozyme is also present, जिसमें antibacterial activity होती है. With the help of salivary amylase, we break down starch into maltose. In stomach, mucosa have gastric gland. Gastric gland have 3 types of cell. Gastric gland के पास 3 टाइप के सेल होते हैं. फर्स्ट वन इज नेक सेल, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं. सेकंड वन वी हैव पेप्टिक और चीफ सेल, जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं. एंड थर्ड वन वी हैव पैराइटल एंड ऑक्सिएंटिक सेल, जो एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं. सो द फूड which mixes with acidic gastric juice in stomach is known as chyme. So pepsinogen is activated by the help of HCl and it become pepsin, and pepsin break down protein into proteases and peptones. तो पेप्सिनोजन को HCl एक्टिवेट करता है और पेप्सिन इसके बदले में क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीएज एंड पेप्टोन्स में. नेक्स्ट एंजाइम वी हैव रेनिन. Renin is helpful in digestion of milk protein and it is only present in infants. Small amount of lipase also secreted from gastric gland, and the mucus which is secreted from neck cell, it mix up with bicarbonate and provide lubrication and protection of mucosa from HCl. If mucus is not there, there is a chances that the person can have ulcers. In small intestine, secretion in small intestine is bile which comes from liver, pancreatic juice which comes from pancreas, and intestinal juice which is secreted by intestine. So first we look at bile. Bile contain pigment known as bilirubin and biliverdin. Bile salt are there, cholesterol is present and phospholipid is present in bile. एंजाइम आर एब्सेंट इन बाइल. तो ये बात आपको याद रखनी है कि बाइल में एंजाइम क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं. बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड इट एक्टिवेट लाइपेज. तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है कि टू ब्रेक डाउन बिग फैट पार्टिकल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है. नेक्स्ट वी लुक एट पेनक्रियाटिक जूस. इन पेनक्रियाटिक जूस वी हैव ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेसिस, न्यूक्लियस. सो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट एंटेरोकाइनेज. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंटेरोकाइनेज सिक्रीट करती है जो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिन में, विच इज़ अ एक्टिव फॉर्म, एंड इन टर्न दिस ट्रिप्सिन एक्टिवेट ऑल अदर पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सिक्रीट करती है एंटेरोकाइनेज विच एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ट्रिप्सिन, एंड देन ट्रिप्सिन विल activate all other pancreatic juice enzymes. Next we see intestinal juice. Secretion of goblet cell plus brush border cell
is intestinal juice, or we can call it succus entericus. So you have to remember this. Intestinal juice is also known as succus entericus. It contains disaccharidases, dipeptidase, lipases, nucleotidases. So the pancreatic juice, which contain trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, convert protein, peptones and protease into dipeptides. Amylase convert polysaccharide into disaccharide. Fat are converted into monoglycerides with the help of lipase. Nucleic acid is converted into nucleotides and then into nucleoside with the help of nucleases. And after that, now succus entericus will work on dipeptide to convert into amino acid with the help of enzyme dipeptidases. Maltase will work on maltose, which converted into glucose plus 2 glucose, because maltose में 2 यूनिट प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज की. लैक्टेज विल ब्रेक डाउन लैक्टोज इंटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सुक्रेज विल break down sucrose into glucose plus fructose. Nucleotidase will break down nucleotides into sugar plus bases. Lipases will break down di and monoglyceraldehyde into फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो बेसिकली जो सकस एंट्रिकस है या फिर इंटेस्टाइनल जूस है, वो जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड, उस लेवल पे ब्रेक डाउन करता है. नेक्स्ट वी लुक एट लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन का कोई देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन. यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको डाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा. इट अब्जॉर्ब सम वाटर एंड सर्टन ड्रग्स एंड इट सिक्रेट म्यूकस फॉर ईजी पैसेज ऑफ द वेस्ट मटीरियल थ्रू रेक्टम एनल पाथवे. Absorption. Now we look at absorption. Digested end product absorbed into blood and lymph from intestine. As I told you earlier, in villi there are present of blood vessels, and through them we will absorb the digested food. So glucose, amino acid and chlorine are absorbed. You must remember this and it is very important. ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किससे किस तरीके से absorb होता है. So glucose, amino acid and chlorine are absorbed with the help of simple diffusion. Fructose is absorbed with facilitated transport. Fatty acids are insoluble, so first we have to convert it into small droplets known as micelles, and then we will move into intestine. So first we पहले हम क्या करते हैं, फैटी एसिड को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जिनको हम मिसेल्स बोलते हैं. देन वी विल ट्रांसफ़र इनटू एपिथेलियल लेयर ऑफ इंटेस्टाइन. देयर वी विल कोट इट विद अ प्रोटीन लेयर. वहाँ हम इसको एक प्रोटीन लेयर से कोट करेंगे. देन वी विल कॉल इट काइलोमाइक्रोन एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन लैक्टेल विच इज़ अ लिम्फ वेसल एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो बेसिकली आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जो फैटी एसिड है दे आर इनसोल्यूबल. सबसे पहले आप उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेंगे जिनको मिसेल्स बोलेंगे. देन दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन. There they are coated with a protein layer. Then we call them chylomicron, and after that they are absorbed by lacteal which is a lymph vessel. So maximum absorption take place in small intestine. Now we have assimilation. The absorbed food will reach to every tissue and every cell, and they will use this food in cellular respiration, and that we call assimilation. And after that all the undigested waste material is egested from our body, which we call egestion. Now we look at some of the disorder of digestive system. First one we have jaundice. jaundice को icterus भी बोलते हैं, ICTERUS. In this liver is affected and high bilirubin level will be found in blood. सो व्हाट इज़ हाई बिलिरुबिन लेवल. कब हम बोलेंगे कि बिलिरुबिन लेवल क्या है, ब्लड में ज़्यादा हो गया है. इफ़ 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गया है बिलिरुबिन लेवल, तो उसको हाई बिलिरुबिन लेवल बोलेंगे. ठीक है. सो देयर इज़ डिफेक्ट इन बाइल सिंथेसिस. इन दिस स्किन एंड आइज टर्न येलो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट in them which is bilirubin. Next we have vomiting. It is caused by abnormal frequency of bowel movement. It is a
बॉडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्या है ज़्यादा ही टॉक्सिक मटेरियल आपकी बॉडी में चला गया है तो बॉडी क्या है उसको वॉमिटिंग के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करेगी. इन दिस द फीकल मैटर इज़ more liquid than normal, so liquidity of fecal matter increase and food absorption is decreased. Next we have constipation. Constipation is due to irregular bowel movement, और इसमें जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो इजीली रिमूव नहीं हो पाता है आपके रेक्टल एनल पाथवे से. एंड द लास्ट वन वी हैव इंडाइजेशन. फूड इज़ नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, और इससे एक फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है, आपको ब्लोटिंग फील होती है, यू विल फील ब्लोटिंग. कॉजेज आर इफ़ यू ईट वेरी स्पाइसी फूड, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. ओवर ईटिंग, आपको बहुत अच्छा लगा खाना, आपने टेस्ट में ज़्यादा खा लिया. एनजाइटी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम को रिलेटेड एनजाइटी है, किसी और चीज़ से रिलेटेड एनजाइटी है, और या फिर आपका जो एंजाइम सिक्रीशन है वो क्या है कम हो गया है किसी कारण से. ओके, सो if you eat spicy food or overeat or you have anxiety or your enzyme secretion decreases, you can have indigestion. So students, if you like this video, please subscribe to our channel and like and share this video. Thank you very much.